Assalamu alaikum and welcome to our second last session of November. And today, to conduct the session of November, we have Miss Rumela Zainab, who is a PhD scholar and NLP practitioner, currently serving as department head at MEMF, passionate about educational leadership, mindset development, and teacher empowerment. Over to you, Ms. Rumela. You may start your session now. Thank you so much, Ms. Farheen. Assalamu alaikum, all of you. Please tell me, please, am I clearly audible to you? Yes. All right. So how are you all today? All the participants. You have to answer, you have to reply because this session is going to be little interactive. So how are you all today? You may unmute. Let me see. I have human with me, not robots. You know, जब कंप्यूटर में पूछते हैं, are you robots? So similarly, I am asking, are you robots? Are you human? तो वैसे भी सलाम का जवाब तो देना फर्ज है ना. So do we have mic control or can they unmute themselves? No. All right. Thank you so much, Farheen. ठीक है. So our today's session is about uncommon sense teaching. But before I start this session, I would like to take a moment to think your ever lesson कि जब आपने बहुत अच्छा लेसन डिलीवर किया, you did everything perfectly, बहुत अच्छा लेसन प्लान था and it went very well in your classroom, सब कुछ अच्छा रहा. And in the reflection you wrote, everything was as expected. It was an ideal lesson. But what happened next? Maybe next day, after a few days, few students missed some information. And you had to repeat the lesson again. क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ? You may write in the chat box. Have you ever experienced this kind of situation? You delivered excellently everything. The student got at that time, but they missed some information after a few days. Or maybe after 24 hours. कभी ऐसा हुआ या नहीं हुआ? Mics are controlled, okay. Have you ever experienced this? It happened with you. Okay, Kaval, it happened. So, what teachers think? They are weak students. They need to do more practice. ऐसा ही होता है. They missed some information, but the brain science says this is totally normal. होता है ये. This is very true. This is very normal. You don't need to think a student is weak. They need to learn from another strategy. So this book is about uncommon sense teaching. Today's session is inspired by this book written by Barbara Oakley. She was a PhD and it was a continuous series of her session learning how to learn. उसकी एक सीरीज से उन्होंने ये बुक लिखी हुई है Uncommon Sense of Teaching. Before starting this session, I would like to introduce myself, although Farheen did this. Currently, I am doing my PhD in Neuro-Linguistic Programming. NLP suggests us how to connect mind and body. Brain and body का connection कैसे develop होता है, वो synchronize कैसे होती है. That's why this topic is very close to my heart कि बच्चा learn कैसे करता है, teachers learning को enhance कैसे कर सकती है, learning how to learn. Let's start officially this session, but please tell me, if we talk about uncommon sense teaching, तो common sense of teaching क्या है? What is the common sense of teaching? We all are teachers. When we go in the classroom, we have some expectation, we have something in our mind, और हम उसी ट्रेंड पे चल रहे होते हैं just like robot.
एंड दिस इज अवर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हमें जाके लेसन डिलीवर करना है, बट कैसे डिलीवर करना है? व्हाट इज अनकॉमन हियर? व्हाट इज एक्चुअली कॉमन सेंस? पहले तो ये बताएं। वट एवर, अच्छा, कॉमन वे ऑफ टीचिंग, रूटीन टीचिंग, वेरी गुड। एंड देन whatever we teach student should learn and understand, ठीक है? So common way of teaching, common way of teaching क्या होता है? Because when we'll talk we will learn more। क्या होती है रूटीन टीचिंग? क्या अनकॉमन सेंस कोई और चीज है? रूटीन टीचिंग क्या होती है? लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज। अच्छा, ये बुक मुझे बड़ी पसंद आई। व्हेन आई वाज रीडिंग दिस होल बुक, इट इज अवेलेबल ऑन पीडीएफ फॉर्म, ठीक है? और उसके कुछ लेसन्स यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, अनकॉमन सेंस ऑफ टीचिंग, या इफ यू कैन फाइंड लर्निंग हाउ टू लर्न। कोसेरा पे पूरा इसका कोर्स पड़ा हुआ है, जो कि 4 मंथ्स का कोर्स है। एंड आई डिड दिस सर्टिफिकेशन फ्रॉम कोसेरा, ऑल्दो इट्स पेड, तो आपको फ्री इस तरह से नहीं मिलेगी। अच्छा, दिस बुक इज नॉट अबाउट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। मजे की बात तो यही है, इस बुक में हमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिली, कोई एआई नहीं मिला इस बुक में हमें। इस बुक में मुझे कोई गेमिफिकेशन नहीं मिली। इस बुक में कोई मुझे ऐसी स्किल नहीं मिली जिससे मैं बच्चे को लर्निंग में इन्वॉल्व कैसे करूं। इट्स ऑल अबाउट ब्रेन सेंस लर्निंग। When we talk about common sense, this book talks about brain sense learning। तो देखते हैं कि इतनी जब बातें हो रही हैं, अनकॉमन इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन और एंटिसिपेशन, ठीक है? देखते हैं। तो अभी आप लोगों ने बताया कि कॉमन सेंस ऑफ टीचिंग क्या है एंड अनकॉमन सेंस ऑफ टीचिंग क्या है। लेट्स सी व्हाट द बुक says about uncommon sense of teaching। So this content is taken from the book and nothing is created by my own or any other source। Learning objectives are, today inshallah we'll discuss, differentiate between common and uncommon classroom practices। जैसे कि you told us this is a common practice, routine teaching, whatsoever method we use in the classroom on regular basis। Then inshallah we'll discuss how memory system and thinking modes shape authentic learning। Learning होती कैसे है? Learning how to learn, and as a teacher how can you help your teachers, your students, your learners। Then we'll discuss प्रोक्रेस्टिनेशन होती क्या है, लर्निंग में उसका रोल क्या होता है, एंड देन व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल दिस प्रोक्रेस्टिनेशन। देन इंशाल्लाह विल डिस्कस प्रोडक्टिव हैबिट्स अमंग लर्नर्स। हमें क्या करना है? प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट। प्रोसेस क्या होता है, कैसे होगा तो प्रोडक्ट क्या आएगी। देन इंशाल्लाह विल रिफ्लेक्ट on their own teaching patterns and practices to shift from institution to इंटेंशन, इंट्यूशन टू इंटेंशन। हमें एक इंट्यूशन है कि हमें ये पढ़ाना है, बट इंटेंशन, वी विल चेंज दिस कॉन्सेप्ट। विल सी इंशाल्लाह के व्हाट्स coming up in our next slides। So what are common to uncommon sense in teaching? These are some common sense in teaching। as you told me कि common sense of teaching क्या होती क्या है? relies on habit and tradition। I have 15 years of experience in blah blah subject। My students get A star and even distinctions। I know how to teach and I have rich experience, and this book is on my fingertip। These are common sentences of our experience or senior teachers। I don't mind। I have no objection on these sentences, but please, what do we do? हम रिलाई कर रहे होते हैं एज अ टीचर, हम रिलाई कर रहे होते हैं अपनी हैबिट्स पे, अपने ट्रेडिशन पे, कि हमने जो पिछले बैच को पढ़ाया था वो उस बैच को पढ़ाएंगे तो ही आएंगे मार्क्स। बट प्लीज, 15 ईयर से आप टीच कर रहे हो, 10 साल पहले बच्चे की नीड्स अलग थी, 10 साल बाद यू आर डीलिंग विद रील्स जनरेशन, उनका अटेंशन वेरी लेस, स्पैन ऑफ अटेंशन इज वेरी लेस। वी नीड टू अंडरस्टैंड। देन टीचर सेंटर्ड टीचर सेंटर्ड लर्निंग और कंटेंट हैवी। बहुत अपने अच्छे लेसन कंटेंट प्रिपेयर कर लिया एंड यू आर वेरी रेडी टू डिलीवर, बट आर यू लिसनिंग टू यू? आर योर लर्नर्स लिसनिंग टू यू? एक बड़े कॉमन फ्रेज है कि लिस्टर कभी फेल नहीं होता, ऑलवेज स्पीकर फेल होता है। इफ योर लर्नर कैन नॉट गेट योर कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ लर्नर, इट्स द फॉल्ट ऑफ स्पीकर। You are not able to deliver whatever you are supposed to do। तो टीचर सेंटर या कंटेंट हैवी
if you delivered, but what happened if students are not able to grasp the concept? This is our common teaching sense. ये पूरा syllabus है, हमें तो complete करना है ना, चाहे इसको short में ले जाओ, but what does it mean short में ले जाओ? What is the purpose of your teaching? Then emphasize repetition and memorization. जितना आप repeat करोगे ना, जितना आप पढ़ते जाओगे इतना आपको याद होता जाएगा. मेमोराइजेशन, आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए. ये तो इसके बगैर याद हो ही नहीं सकता. ये तो फैक्ट्स है, फैक्ट्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे. तो वो तो कॉमन सेंस ऑफ टीचिंग तो ये है कि जितनी ज्यादा आप रिपीट करोगे चीजों को, इतना ज्यादा आपको याद होता जाएगा. आई डोंट माइंड रिपीटेशन, ठीक है, लेकिन अच्छा आगे बढ़ते हैं. बिलीव्स मोर टीचिंग मीन्स मोर लर्निंग. एग्जाम आने वाले हैं, रिविजन होगा ना, ज्यादा तैयारी अच्छी होगी. सो मोर टीचिंग, बहुत ज्यादा पढ़ाओ, उसकी reinforcement कराओ. More teaching means more learning, but in actual, according to this book, according to brain science and according to research, these are common sense of teaching. देखो repetition, learning is not about repetition. Learning is about connecting. आपके ब्रेन में, बच्चे के ब्रेन में जब तक न्यूरॉन्स कनेक्ट नहीं होते ना, रिपीटेशन विल नॉट वर्क. यस, रिपीटेशन विल वर्क इफ यू वांट देम टू मेमोराइज. यू नीड टू बिल्ड कनेक्शन फर्स्ट, repetition later. ठीक है, so if we talk about only repetition without connecting the dots, it will not work. Believes more teaching means more learning. Sometimes it fails because only you are delivering on pouring lesson and lesson. But what is the output? You need to make them engage in learning. You need them to feel content to their heart, to their mind. Otherwise, there is no purpose of learning. Now, according to the book, what is the uncommon sense of teaching? Uncommon teaching sense says it is guided by how the brain actually learns. देखते हैं आगे की इसमें क्या है. How does the brain learn? Then student center and evidence informed. एक स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम कैसा होगा? जिसमें एक्टिविटीज होंगी, जिसमें स्टूडेंट फील स्टूडेंट इज इम्पोर्टेंट और स्टूडेंट गेट डोमिनेंस. ठीक है, इसको हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस बुक कंटेंट क्या डिलीवर कर रहा है इसके अंदर, के हाउ एक्चुअली आवर ब्रेन वर्क्स इन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग. क्या होती है? फोकस ऑन रिट्रीवल, रिफ्लेक्शन एंड कनेक्शन. वी आर सेइंग द सेम थिंग. रिपीटेशन करो, रिट्राइव ऑफ नॉलेज, रिट्रीवल तो हमें करना है, रिफ्लेक्शन तो करनी है, बट यू नीड टू मेक कनेक्शन फर्स्ट, retrieval later, reflection later. So only repetition and memorization will not work. छोटी सी एग्जांपल इसकी लेते हैं. एक बच्चे से आपने कहा कि टेबल याद कर लो, बड़ा उसने उस वक्त याद कर लिया. हमने भी बचपन में बहुत सारे टेबल्स याद किए थे. आपको कितने टेबल्स याद है? फोन नंबर आप बच्चे से याद करवा ले, 2 दिन तक तो याद रहेगा. कितने दिन तक याद रहेगा? कब तक याद रहेगा? कब तक याद रहेगा? यहाँ हियर वी विल डिस्कस कि एक मेमोरी में स्टोर इंफॉर्मेशन कब तक स्टोर हो सकती है. सो इफ यू टॉक अबाउट कि फोन नंबर याद रहे, हमें 2 महीने तक याद रहे. इफ यू टॉक अबाउट कि हमने टेबल याद किए थे, हमें तो 1 साल तक याद रहे. तो व्हाट इज द स्पैन ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी? इंशाल्लाह हियर विल डिस्कस. देन प्रमोट्स टीच लेस, लर्न मोर. इट डजंट मीन कि टीच मोर एंड it doesn't mean that more teaching is more learning. No, teach less, learn more through activities, through engagement, through active engagement. अगर हम रिसेंटली अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वहां हमने गेमिफिकेशन पर बात की. You don't teach or you teach less, but when students are involved, actively involved in learning, they produce more knowledge and it's a deep learning. तो होता क्या है एक्चुअली कि आपकी जो लर्निंग है ना, वो अटेंशन से नहीं होती. Attention is not learning, retention is learning. If students are focusing on your whatever you are saying, नहीं सुनता आपकी बात, दोबारा से पूछते after 5 minutes, teacher what was that, and you say आप attentive नहीं थे. Attention is not learning, please. According to this book, this phrase is very close to my heart. Attention is not learning, retention is learning. तो बच्चा आपकी बात को, लर्नर आपके कंटेंट को कितना ज्यादा ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्व करता है, दिस इज लर्निंग. सो व्हाट मेक्स अनकॉमन टीचिंग truly works? There are few it's a wheel talks about कि अनकॉमन टीचिंग क्या है. दिस इज अंडरस्टैंडिंग मेमोरी, procedural learning, modes of thinking, motivation and habit, and then
The last thing is product over process over product, or some techniques to maintain more productivity, some techniques to get more productivity. ये सारा जो व्हील है ना, वन बाय वन यहाँ एक्सप्लेन होगा, एंड हियर वी विल डिस्कस हाउ डज ब्रेन वर्क एक्चुअली. फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे ने आपके बहुत अच्छा याद कर लिया. दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट. हाउ स्टूडेंट फूल देमसेल्फ इनटू थिंकिंग दे आर लर्निंग. क्लास के अंदर बहुत अच्छा लेसन डिलीवर हुआ, एक दिन बाद बच्चा दे मिस्ड देयर लेसन, दे मिस्ड सम इंफॉर्मेशन, डिस्टॉर्ट एंड डिलीट सम इंफॉर्मेशन इन देयर मेमोरी. ठीक है, गेट इंफॉर्मेशन, देन डिस्टॉर्ट, देन डिलीट. कुछ इंफॉर्मेशन फिल्टर होती है, रह जाती है, कुछ डिलीट हो जाती है. तो स्टूडेंट फील देमसेल्फ के उनको याद हो गया सब कुछ, दे आर लर्निंग, बट एक्चुअली दे आर मेकिंग देम फूल, कि उनको याद हो गया. एंड दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम. अब ये स्टूडेंट किस तरह समझते हैं कि उनको याद हो गया, या टीचर कैसे समझती है कि वो स्टूडेंट को ये लेसन याद हो गया, कि नो, ही इज आंसरिंग मी वेरी वेल, ही इज वेरी एक्टिव पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम, and he can retain that information, he can retain this information, but actually this is not correct. They will lose their information, they will miss the information, or they will left some information behind. तो हम देखते हैं कि मेमोरी कैसे काम करती है, ब्रेन कैसे वर्क करता है. स्टूडेंट को ये इल्यूजन क्यों होता है कि दे लर्न इंफॉर्मेशन, दे लर्न द कंटेंट, एंड एक्चुअली they are making themselves fool. Before we start memory, let's see the picture. It talks about sensory memory. There are three types of memory basically. सेंसरी मेमोरी. सेंसरी मेमोरी का स्पैन क्या होता है? फ्यू सेकंड्स और मे बी लेस देन फ्यू सेकंड्स. सेंसरी मेमोरीज एग्जांपल्स क्या हो सकती है इसकी? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. सेंसरी मेमोरीज की एग्जांपल क्या हो सकती है? What are the sensory memories example? You taste something that and hurting by pinching, ठीक है, and you taste something, the taste is very bitter, the food is not good. अच्छा, टेस्ट और टच, ठीक है. सो व्हेन यू फील दिस विजुअल लर्निंग, टेस्ट लर्निंग तो बात नहीं कर रहे, ठीक है, विजुअल लर्निंग, टेस्ट, टच, दीज आर सेंसरी इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग इन आवर ब्रेन. हमें ब्रेन अपना अलर्ट कर देता है, सी फील, ठीक है. तो वी गेट सम सेंसेशन इन आवर ब्रेन कि नो, दिस इज नॉट सेफ और दिस इज सेफ, ठीक है. तो दिस इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम आवर सेंसेस, और ये हमारी मेमोरी में बहुत कम रीडिंग के लिए रहती है. यस, रीडिंग बिल बोर्ड आपने देखा, आपने उसको सेंस किया, एंड देन व्हेन यू लीव द रोड और द पाथ, you don't recognize, you don't memorize. तो इसका span according to this research is very less, milliseconds और few seconds. This is sensory memory. लेकिन इसके बाद जो हमारा बच्चा क्लासरूम के अंदर मेमोराइज कर रहा होता है ना, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, और इन मॉडर्न वर्ल्ड वी कॉल देम वर्किंग मेमोरी. उसका स्पैन क्या होता है? 1 minute, 24 hours और 1 week, समटाइम 1 week. आपकी इंफॉर्मेशन जो आपका बच्चा याद कर रहा है, जो कंटेंट आपका लर्नर याद कर रहा है ना, इट कुड बी सेव इन देयर ब्रेन फॉर अ मैक्सिमम फॉर अ वीक. तो ये हमारी है वर्किंग मेमोरी. बच्चे ने बहुत अच्छा याद कर लिया, हमने फोन नंबर रिपीट करवा दिया, उसने याद कर लिया. नहीं रिपीट करेगा, भूल जाएगा. आज उसने कंटेंट याद किया, टाइमलाइन याद कर ली कोई, कल तक हो सकता है कुछ ईयर्स मिस कर जाए, 2 days बाद वो फर्दर मिस कर सकता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, वर्किंग मेमोरी वर्क्स मैक्सिमम 1 week. इसके बाद वो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट या ब्लर होना शुरू हो जाती है. सो व्हाट डू वी डू? लर्न बाय डूइंग, ठीक है. तो लर्न बाय डूइंग इज एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. सबको इंफॉर्मेशन याद रहेगी. मेरे साथ ये अच्छाई की थी, मुझे आज तक याद है तुमने उस वक्त मेरा कैसे साथ दिया था. क्यों? बिकॉज यू फेल्ट दैट मोमेंट. तुमने मेरे साथ उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया. बच्चे को जब हमारी जरूरत थी, हमने उसको हक किया, बच्चे को मोमेंट याद रह गया. हमने एक मदर की काउंसलिंग कर दी, उसको याद रह गई. उसने कहा कि नहीं, आपने उस वक्त मेरे बच्चे के साथ बड़ा अच्छा किया था, जब उसको स्पोर्ट्स में चोट लगी थी. बच्चा घर आके बड़ी तारीफ कर रहा था, तब से 2 सालों का आपका फैन है. बिकॉज दिस मोमेंट इज फिक्स्ड इन देयर लॉन्ग टर्म मेमोरी. उसने बार बार रिकॉल तो नहीं किया, उसने रोज याद तो नहीं किया उस मोमेंट को,
but that moment touched their heart. So a teacher need to make the content which could involve learner, which could touch their heart, क्योंकि जब तक content में emotion नहीं होंगे ना, वो आपकी long term learning नहीं हो सकती. अब common study habits होती क्या है? After this discussion, now let's talk about common study habits जो हमारा बच्चा कर रहा होता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. Students often confuse working memory कि हम बच्चे ने बहुत याद कर लिया, पूरा पूरा दिन बच्चा याद करे. आई एम वेरी, क्या कहें, मुझे बहुत हैरत होती है जब हम बहुत सारे पेरेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं. आते हैं पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा तो 4 बजे ट्यूशन जाता है, रात को 10 बजे आता है. ट्यूशन वाली बाजी उसको छुट्टी नहीं देती है तब तक जब तक उसको लेसन याद ना हो. आर यू सीरियस? 4 बजे से लेकर 10 बजे तक बच्चे को अच्छा याद हो जाता है, फिर बच्चे को छुट्टी होती है, तो स्टूडेंट फील कंफ्यूज कि उसकी वर्किंग मेमोरी में कितनी ज्यादा रिटेंशन, कितना याद करेंगे वो, कितना पढ़ेंगे. एंड एक्चुअली होता क्या है, रिपीटेशन रिपीटेशन. तो जब तक आप रिपीटेशन करते जाओगे ना, दिस बुक सेज कि ये रिपीटेशन आपको फॉल्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दे रही होती है कि आपको सब याद हो गया, बच्चे को सब याद हो गया. और फिर एक और प्रैक्टिस बच्चों की क्या होती है, दे हाईलाइट एंड दे रीरीड. जल्दी से हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लो, नोट्स बना लो, वो आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाएगा. और रीरीड, ताकि जितना रिपीट करोगे ना उतना याद होता जाएगा. एक इन्फॉर्मेशन को बार बार पढ़ोगे तो याद होती जाएगी. और स्टूडेंट इस इल्यूजन में होते हैं कि उनको सब याद हो गया. स्टूडेंट में फील दे अंडरस्टैंड मटेरियल विदाउट ट्रूली मास्टरिंग इट. उनको सब याद हो गया, क्यों? इसलिए कि उन्होंने बहुत ज्यादा, व्हेन दे ओपन द बुक एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ देम. मुझे सब याद हो गया, मैंने तो ये भी याद कर लिया, वो भी, पिक्चर की लेबलिंग याद हो गई. बट व्हेन दे क्लोज द बुक, जब उनका माइंड रिलैक्स होता है, उनकी वर्किंग मेमोरी स्टॉप होती है काम करना, दे मिस्ड इन्फॉर्मेशन, उसका रिजल्ट क्या होता है कि पैनिक हो जाते हैं ड्यूरिंग टेस्ट. एंड वो कहते हैं एग्जाम में जाके तो मैं सब भूल गया, मैं तो पक्का याद करके गया था. दिस इज वेरी कॉमन सेंटेंसेस बाय आवर स्टूडेंट कि मिस मैंने तो पक्का याद किया था, मैं तो सब कुछ मुझे आता था, लेकिन पता नहीं कैसे पेपर में तो सब सामने आया तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं भूल गया. बेटा, बिकॉज यू डिड नॉट मास्टर योर कंटेंट. आपको इल्यूजन ये होता है कि जितना आप देखते हो ना आपको याद है, लेकिन जब आपने बुक क्लोज की, आप नहीं याद होता. अब प्रॉब्लम क्या है? ये रिसर्च कहती है बारबरा ओकले की कि जितना आप ज्यादा रिपीट करते हो ना, आपकी वर्किंग मेमोरी वो इस इंफॉर्मेशन को डिस्टोर्ट और ब्लर करना शुरू कर देती है. कंटिन्यूअस रिपीटेशन डजंट मीन कि आपका वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती जाएगी, क्योंकि आप जितना ज्यादा लोड दोगे उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती. आप उस वर्किंग मेमोरी पे जितना ज्यादा लोड दोगे, यू विल मिस दिस इंफॉर्मेशन. अब होता क्या है, हमें करना क्या है? अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन हेल्प रिड्यूस एंजाइटी. एज अ टीचर हमें क्या करना है, एज अ स्टूडेंट हमें क्या करना है, क्योंकि हर टीचर भी लर्नर है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी वर्किंग मेमोरी की या शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी इतनी नहीं है, उस पर हम बहुत ज्यादा बर्डन नहीं कर सकते. सो प्लीज फील योर कंटेंट, फील योर कंटेंट व्हेन यू मेक सम कंटेंट. अपने बच्चे के लिए जब कंटेंट बना रहे हो, व्हेन यू मेक सम कंटेंट और व्हेन यू आर लर्निंग कंटेंट फॉर योरसेल्फ, ट्राई टू फील योर कंटेंट, ट्राई टू कनेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंट इन योर न्यूरॉन्स. क्योंकि जब हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में जब कनेक्शन डेवलप होता है तो ही आपकी लर्निंग होगी. कनेक्शन डेवलप नहीं होगा तो आपकी इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर होगी. जैसे हमने रियल लाइफ इवेंट्स दिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दी. अब स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं? एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रेदर देन पैसिव रिव्यू. बुक खोलना, हाईलाइट करना, इट विल नॉट वर्क. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लाए, उनको बच्चों को डायरेक्ट एक्टिवली इंगेज करें प्रॉब्लम में. बिल्ड एंड ब्रेक करो, तोड़ो, खुद सीखोगे. इट विल फिक्स देयर, द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन विल फिक्स इन देयर ब्रेन. दिस इज ब्रेन सेंस ऑफ लर्निंग. बच्चा खुद करेगा, तोड़ेगा, बनाएगा. एट द एंड ही विल लर्न what to do, how to do, किस तरह से करना है, क्या बनाना है, क्या तोड़ना है. You can find so many thousands of activities through GPT, through AI. ठीक है, तो whatever your content is, give prompt to the GPT कि I want them actively engage in this session rather than passive. तो बेटा बुक वाली लर्निंग आपकी, ठीक है, बुक रीडिंग इज important, but there are so many ways to make them engage in reading as well. आप चेक तो करें
कितना ज्यादा रिसर्च का लिटरेचर भरा हुआ है कि हाउ यू कैन एंगेज देमसेल्फ इन रीडिंग। तो पैसिव रीडिंग रीडिंग बच्चा करेगा, लेकिन उसको पैसिव रीडिंग से एक्टिव रीडिंग में कैसे कन्वर्ट करवाना है, यू विल फाइंड डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, देन प्रैक्टिस एवरीवेयर। हमें याद होगा बचपन में, इवन अब भी छोटे बच्चों को जब करवाते हैं कलर्स कैसे याद कराते हैं, दिस इज ब्लू, दिस इज पिंक। कहीं भी जाते हैं, बेटा कैन यू फाइंड ब्लू, कैन यू फाइंड पिंक, बच्चा स्टार्टिंग ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड देम, can they find blue, can they find, so practice everywhere whatever is your content, think about your content, try to connect, try to integrate with the real world, and then practice everywhere. Then self testing for long term retention, लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी तभी काम करेगी जब आपकी रिटेंशन होगी, जब आपका कनेक्शन बिल्ड होगा, बट सेल्फ टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन टेस्ट फ्रॉम डिफरेंट टूल्स, GPT is one of the most user friendly tool. Give them task, give GPT prompt कि ठीक है मेरा टेस्ट दो, I want to check my own learning on this topic. So you student need to understand these effective techniques instead of reading and writing and highlighting things in the notebook and repeating and memorization only नहीं. Self test will work them, or self reflection is more important than these kind of learning. इसके बाद हम छोटी सी एक और चीज देखते हैं, लर्निंग होती कैसे, थिंकिंग कैसे होती है, हाउ डू वी थिंक, हाउ डू आवर ब्रेन थिंक। कभी हम सोचते हैं इसने मुझे ऐसा कहा, इतनी अच्छी हमारी वर्कशॉप चल रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथली, प्रिंसिपल ने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया एंड आई वाज अनेबल टू आंसर प्रॉम्प्टली और प्रॉपरली। अगर मैं ये आंसर देती तो कितना अच्छा था, मुझे तो हर चीज बाद में ही याद आती है। दिस इज अवर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। बहुत अच्छा जवाब था मेरे पास, लेकिन टाइम पे तो मेरा दिमाग चलता ही नहीं है, व्हाई नॉट। सो दिस इज अवर मोड ऑफ थिंकिंग, हम कैसे सोचते हैं, हमारी लर्निंग कैसे होती है। सो वी हैव टू मोड्स ऑफ थिंकिंग, दिस इज फोकस मोड एंड दिस इज डिफ्यूज मोड। बचपन में हम लोगों ने गेम खेली होगी, पिन बॉल गेम्स जस्ट लाइक दिस। ये आपकी थॉट्स हैं विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड डिफ्यूज मोड में आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं ना बहुत दूर दूर होते हैं, दीज बॉल्स आर वेरी फार अवे। अब होता क्या है, फोकस मोड आपके करता क्या है, it works like a spotlight, sharp, intense, concentration। बहुत ज्यादा काम में होते हो ना, हर चीज पे फोकस करो बच्चे से कहते हो, व्हाट डज इट मीन कि फोकस करो, कंसंट्रेट करो, किस पे कंसंट्रेट करो, उस टॉपिक पे, इसको स्पॉटलाइट में लाओ, उसको शार्प दो, इसको इंटेंसिटी दो। इट्स बेटर, नो डाउट दिस फोकस मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स बेस्ट फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम, नॉट एवरी प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम और डूइंग कैलकुलेशंस। मैथ्स के प्रॉब्लम आप करवा रहे हो ना, मल्टीप्लिकेशन आपने बेसिक लेवल की करवा दी, नाउ दे नीड टू गेट मास्टरी ऑन दैट टॉपिक, सो दे नीड टू फोकस मोर ऑन द लर्न कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल करवा रहे हो, ऑलरेडी बच्चा थ्योरी पढ़ के आया है, दे नीड टू फोकस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विच इज ऑलरेडी नोन टू देम, हम ये नहीं समझते। फोकस मोड इज ओनली वर्किंग व्हेन द इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी लर्न टू देम, और उसको फोकस करके उसको पॉलिश करें। एंगेज व्हेन वी थिंक डीपली, जब बहुत ज्यादा डीपली सोचते हैं और एनालिटिकली सोचते हैं। एक प्रोजेक्ट को हम बहुत ज्यादा उसका हमने पहले माइंड मैप बना लिया एक प्रोजेक्ट का, ना वी वांट टू मेक दिस प्रोजेक्ट मोर प्रेजेंटेबल वे, तो उसको फोकस करेंगे, उसको हम और अच्छा सोचेंगे तो हमें और आइडियाज, उस पर हम और अच्छा काम कर सकते हैं। बट व्हेन द टीचर इज टीचिंग द न्यू टॉपिक, when the teacher is introducing new topic like multiplication, first time you are introducing in grade 1, grade 2, one digit multiplication, two digit multiplication, so you don't need to get involved student in focused mode of teaching, क्योंकि focused mode आपका कब काम करेगा, बच्चा आपका कब फोकस होगा, जब उसको ये प्रॉब्लम आती होगी। लेकिन ब्रेन साइंस क्या कहता है कि जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ा रहे हो ना, उसको डिफ्यूज मोड में पढ़ाया जाए। व्हाट डज इट मीन, कि बच्चे को रिलैक्स किया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्नर आपका रिलैक्स हो, उसका माइंड रेडी हो। सी मोर रिलैक्स एंड ओपन माइंडेड थिंकिंग like a pinball bouncing freely, ideas connect unexpectedly because it encourages creativity and big picture understanding. So whenever we teach new topic like multiplication, हम बच्चे को क्या करते हैं, this is our common understanding, किसी टॉय से पढ़ा दिया दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और प्लस का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, देयर आर 3 टॉयज एंड देयर आर 2 टॉयज, हाउ मेनी टॉयज। सो दिस इज डिफ्यूज मोड ऑफ लर्निंग। उसमें क्या होगा कि आपका ब्रेन ओपन है, यू आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक विद डिफरेंट एक्टिविटीज
इसमें आपको जब whenever you introduce new topic, आपको क्या चाहिए? इवन जब बहुत बड़े क्रिएटिव आइडियाज ला रहे हो, सोच रहे हो, वेरी कॉमन अगर हम एग्जांपल लें, हमने सबने ये फील किया होगा, जब आप बात ले रहे हैं, जब वाटर थेरेपी कर रहे हैं, तो आपका माइंड बड़ा रिलैक्स होता है। आपके माइंड में बड़े अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आ रहे होते हैं। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, आपका दिमाग रिलैक्स होता है। बहुत अच्छी चीज़ें सोच रहे होते हो, मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। व्हाई? बिकॉज़ योर ब्रेन इज़ रिलैक्स। यू आर एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो जब भी आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं ना, यू आर इन डिफ्यूज मोड ऑफ लर्निंग। आपका ब्रेन स्ट्रेस नहीं है, आपका ब्रेन रिलैक्स है। योर न्यूरॉन्स आर वेरी फ्री, और आपकी जो मूवमेंट है ना थॉट्स की, यहाँ से यहाँ फ्री मूव कर रही है, एंड हियर यू आर थिंकिंग समथिंग इनोवेटिव। बच्चा भी यहाँ से चीजों को ज्यादा अच्छी तरह ग्रैब कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जबकि फोकस मोड में क्या कर रहा है, द योर आपका जो क्या कहेंगे उसको, यू आर थिंकिंग अबाउट अ सिंगल टॉपिक और समथिंग वेरी पर्टिकुलर। फिर क्या करते हैं, अब मेरा दिमाग में दर्द होगी ये सोच सोच के, ये पढ़ पढ़ के, नाउ आई नीड सम रिलैक्स, कुछ और करते हैं। बिकॉज आपके न्यूरॉन्स जो है ना, वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतने ज्यादा पैक्ड हो जाते हैं, आपस में टाइट हो जाते हैं, देन यू गेट फेड अप। फोकस मोड इज नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट, बट whenever you are doing something new, you need to take them in diffuse mode of learning. Please यहाँ तक थोड़ा सा पॉज करते हैं। Am I clear to you? Because it is very important. If you don't get my content, speaker is well, not listener. So please, I need feedback here. Are you getting what is focus mode of learning or diffuse mode of learning? What is memory, sensory, short term, and long term memory? How can we store information in long term memory? How can we create content, feel emotion close to our heart? Thank you so much. Let's see this picture. Focus thinking. बहुत किसी चीज पे गौर व फिक्र कर रहे हैं, एक रिसर्च प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, और रिसर्च में आप उस पर्टिकुलर केस को देख रहे हो, केस स्टडी कर रहे हो, फोकस थिंकिंग। दिस इज नैरो एंड टारगेटेड, यू डोंट हैव सो मेनी ऑप्शंस। मेथोडोलॉजी है, यू नीड टू फुलफिल। आप अगर प्रैक्टिकल बच्चा कर रहा है, उसके पास ऑप्शंस नहीं है, दे नीड टू फॉलो द सेम मेथोडोलॉजी। टेक्निकल है, नेसेसरी फॉर डीप वर्किंग, बिकॉज फोकस थिंकिंग उसके बगैर हो ही नहीं सकती। डीप वर्क कर रहे हो जब आप, यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग, you need to focus. So this is focus thinking. If we talk about diffuse thinking, it's broad and conceptual. बहुत बड़े लेवल पे जाके आप चीजें सोच रहे होते हो, आइडियाज जनरेट कर रहे होते हो, इनोवेशन ला रहे होते हो, यू आर द ब्रेन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, लाइक देन यू आर डूइंग समथिंग स्ट्रेटेजिक। बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, नए आइडियाज लेकर आओ, उनकी वर्थ होगी। तो आइडियाज कहाँ से आएंगे? जब उस चीज पे फोकस करोगे, उससे नहीं आएंगे। यू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, उस टॉपिक से निकल के दूसरी चीजों को एक्सप्लोर करोगे, दुनिया में क्या हो रहा है, उन टॉपिक से दूसरी चीजें कनेक्टेड क्या है। यू हैव टू ब्रॉडन वाइडन योर स्कोप, योर कैनवस, तब आपके पास नई स्ट्रेटेजीज आएंगी। दिस इज डिफ्यूज थिंकिंग, एंड देन uncovers meaning and connection. This is diffuse and focused mode of learning. तो you need to understand and your learner need to understand कि आप किस मोड पे जाके काम करेंगे, कब आपको रिलैक्स हो रहा है, कब आपको किस तरह से काम करना है, कब आपको फोकस अपना चेंज करना है। व्हाट इज दिस नाउ? इट्स अ क्लॉक। प्रोक्रेस्टिनेशन एंड पोमोडोरो टेक्निक सुना होगा आप लोगों ने, अगर नहीं सुना तो आज देख लेते हैं। पोमोडोरो टेक्निक इट्स वेरी, टोमेटो टेक्निक उसको हम कहते हैं, किचन टेक्निक और टोमेटो टेक्निक, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री थी। आई वुड लाइक you all to explore what was the Pomodoro tech, what was, how it was initiated or originated, the pro Pomodoro technique or the tomato or the kitchen technique. इसको जाके प्लीज जरूर सर्च कीजिएगा, यू विल गेट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो प्रोक्रेस्टिनेशन होती क्या है? डिलेइंग टास्क ड्यू टू, बोर हो गई, मजा नहीं आ रहा, डिस्कम्फर्ट हो गए, बहुत मुश्किल है, स्ट्रेस हो रहा है, मैं तो पढ़ पढ़ के थक गई, मैं तो पढ़ा पढ़ा के थक गई, टीचिंग से मैं बोर हो गई। प्रोक्रेस्टिनेशन। नाउ थिंकिंग अबाउट द टास्क फील हार्डर देन डूइंग इट।
इतना ज्यादा वर्कलोड, इतना ज्यादा काम, इतने ज्यादा सिलेबस याद करना है, इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स याद करने हैं, 7 7 सब्जेक्ट एक बच्चा। आई एम गेटिंग बोर्ड, आई एम नॉट कंफर्टेबल, दिस कंटेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू मी, मैथ्स तो मेरा काम ही नहीं है, मुझसे होता ही नहीं है। तो क्या होगा? जब आप मैथ्स आपको नहीं आता ना, तो आप क्या करोगे? यू विल नॉट टेक इंटरेस्ट। फिर आप क्या करोगे? प्रोक्रेस्टिनेशन, चलता जाए, मुझसे नहीं होता है। होमवर्क भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली जब स्कूल आओगे, बच्चा लर्नर आपका स्कूल आएगा, जब टीचर भी कहेगी वीक लर्नर है, काम नहीं करता है, हर बात में इसकी सुस्ती है, लेजीनेस है। बट एक्चुअली क्या है, उसका सोल्यूशन क्या किया जाए? तो प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, नहीं अच्छा लगता, बोर हो जाते हैं उस काम में। तो हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट इन दैट टास्क विच यू डोंट लाइक? नहीं कर सकते। बट यू नीड टू टेक दिस चैलेंज। हाउ टू टेक दिस चैलेंज? द पोमोडोरो टेक्निक, उसको हम कहते हैं किचन टेक्निक। किस तरह से काम करें? वर्क 25 मिनट, ज्यादा नहीं करो, देन टेक 5 मिनट ब्रेक। वो प्रॉब्लम जो आपको मुश्किल लगती है ना, उसको डिफ्यूज मोड पे जाके सोचो, फोकस मोड पे जाके सोचो, बच्चे को इस तरह से कराओ, इस तरह से उसको मोल्ड करो। सो वर्क 25 मिनट्स ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक, ऑन वट एवर द कॉन्टेंट यू हैव। इस्लामियात का याद करना है, SST PST याद करना है, 25 मिनट्स। और इवन यू आर डूइंग योर ओन वर्क, यू आर डूइंग योर ओन रिसर्च, यू आर रीडिंग सम बुक विच इज नॉट आपका जॉनर नहीं है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस बुक में, लेकिन यू टुक दिस चैलेंज कि आपको ये टास्क पूरा करना है, PPT बनानी है आपको। व्हाट विल यू डू? पोमोडोरो टेक्निक। क्या करोगे? 25 मिनट का टाइमर सेट किया, सेट दिस टाइमर, दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम, कि आपका ब्रेन कितना ज्यादा रिटेंशन कर सकता है, कितनी देर तक फोकस कर सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। वर्क 24 मिनट्स, देन टेक 5 मिनट ब्रेक। अब रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस एंड रीसेट फोकस आफ्टर ईच साइकिल। ना इसमें आप फोन देखेंगे, ना इसमें आप कोई कॉल लेंगे, ना इसमें आप किसी तरह का टी ब्रेक लेंगे, ना इसमें आप किसी से बात करेंगे। यू विल ओनली फोकस ऑन द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बिकॉज नाउ योर ब्रेन इज इन फोकस मोड कि आपको इसको 25 मिनट में इस चैप्टर को या इस टॉपिक को या इस कंटेंट को फिनिश करना है, इस टास्क को कंप्लीट करना है। वॉट एवर, इफ यू आर इवन वॉचिंग एनी डिजिटल लेसन, रीडिंग कर रहे हो, डिजिटल लेसन कर रहे हो, व्हाट्स एवर यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर practicing some skills, 25 मिनट कंसंट्रेशन फोकस, देन रिवॉर्ड योरसेल्फ। 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, रिलैक्स किया आपने, जिससे आपको 2 to 3 pomodoro you need to repeat in the same day. Why? Because you don't have to only produce, you have to work on process. तो क्या होगा? फोकस ऑन हाउ यू स्टडी, नॉट जस्ट द रिजल्ट कि मैंने ये कर लिया। नो, आपका प्रोसेस क्या था, कितना फोकस किया, कि आप उस स्पैन को फॉलो किया। सो प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट। अगर आप देखें आपकी क्लासरूम के अंदर क्या होता है, 45 मिनट्स का यूनिट होता है, तो कोई ना कोई लॉजिक तो होगी इसके पीछे। हमने कभी सोचा है क्या लॉजिक है इसके पीछे, कि 45 मिनट्स का, 35 मिनट का यूनिट क्यों होता है? क्यों 15 मिनट्स का यूनिट नहीं होता? क्यों 2 आवर्स का यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है 2 आवर का यूनिट, लेकिन छोटे बच्चों के लिए क्यों नहीं होता? और अगर 2 आवर का यूनिट यूनिवर्सिटी में होता है, तो यू गेट अ ब्रेक ड्यूरिंग दैट होल सेशन। तो क्या है एक्चुअली ये? अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, अकॉर्डिंग टू पोमोडोरो टेक्निक, अकॉर्डिंग टू दिस रिवॉर्ड एंड ट्रीट, ये पूरी उस पे बनाई गई, ये पूरा टाइम टेबल सेट किया जाता है कि प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट। आपका ब्रेन इतना ज्यादा, स्टूडेंट का ब्रेन इतना ज्यादा, इससे ज्यादा रिटेन कर नहीं सकता, इतना ज्यादा फोकस कर नहीं सकता, वो शट डाउन हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए क्या होगा? प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट, 25 मिनट काम किया, देन रिलैक्स योर ब्रेन, स्ट्रॉन्ग स्टडी हैबिट। उससे क्या होगा? जब आप व्हेन यू रिपीट द सेम टेक्निक अगेन एंड अगेन, इट विल हैबिट ऑफ लर्निंग। तो कंसिस्टेंट प्रोग्रेस एंड कॉन्फिडेंस यू विल फील। अच्छा, बार बार जब आप रिपीट करते जाते हो, तो ले ले क्रिकेट ले ले, वो भी प्रैक्टिस करते हैं, वर्ल्ड चैंपियन वो भी प्रैक्टिस करते हैं, उनकी भी हैबिट्स होती है।
तो क्यों प्रैक्टिस करते हैं? उनकी तो वो तो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोसेस को क्यों फॉलो करते हैं? व्हाई डू दे प्रैक्टिस? उनको जरूरत क्या है? दुनिया उनको मानती है, दे आर वर्ल्ड चैंपियन। प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो भी उनको आता है खेलना। बट नहीं, strong study habit, strong practice habits. It's a consistent progress and confidence. उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो एक जो एक पॉडकास्ट हमने सुना था, जो आपके कर रहे होते हैं टी डेस्क पे, बड़े बड़े एजुकेटर्स आ रहे होते हैं, एक 20 मिनट्स की जो टॉक कर रहे होते हैं ना, इसके पीछे उनकी 16 आवर्स 17 आवर्स की पूरी प्रैक्टिस होती है, रिहर्सल होती है। सो प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट। यू नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग स्टडी हैबिट्स। देन इसका बेनिफिट क्या होगा? It builds sustained focus and reduce procrastination because it will be the part of your daily habit. Then short breaks refresh the mind and boost motivation. बाय द वे, हम क्लास में बच्चों को कितना ज्यादा ब्रेक देते हैं? हमारे पास तो वैसे ही 45 मिनट का यूनिट होता है। देन उसमें 10 मिनट सेटलमेंट के, 10 मिनट एग्जिट के, बचता क्या यूनिट? So we need to rethink. We need to use uncommon sense whenever, somewhere. ठीक है? So what are habits actually? Habits are the hidden force behind learning. हमें पता भी नहीं होता कि हमारी लर्निंग वो कैसे रही है। एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में कैसे आ रहे होते हैं। हर किसी का डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है, मेरे बराबर वाले का, हर इंडिविजुअल का डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस। तो वो हिडन फोर्सेस होते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपनी अपनी बैकग्राउंड होते हैं। बट एक्सीलेंस isn't built in a day, it's built in daily habits. बहुत सारी स्टोरीज है हमारे पास दैट प्रूव द पावर ऑफ हैबिट्स। थॉमस एडिसन की सबने हमने स्टोरी सुनी हुई है। कितनी बार उसने एक्सपेरिमेंट की है, कभी गिव अप नहीं किया। उसकी हैबिट थी, वो करता रहा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। एट द एंड दुनिया उसकी क्रिएशन को एडमायर करने लगी। सेरेना विलियम्स, उसकी हैबिट क्या थी? डिसिप्लिन की। उसकी डिसिप्लिन, उस हैबिट ने उसकी लाइफ को कितना ज्यादा सक्सेसफुल कर दिया। दीज आर हीरोज। एलॉन मस्क, वो बहुत अच्छा लर्नर नहीं था। उसके पास नेचुरल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा नहीं थी कि जिसको हम कहें कि नो, ही वाज द ब्रिलियंट, एंड देन दुनिया उसको क्यों मानती है? आप उसकी स्टोरीज तो पढ़े। उसकी क्या थी हैबिट? लर्निंग हैबिट। वो चीजों को लर्न बहुत करता था। किस तरह से? अपने सराउंडिंग से, अपने बैकग्राउंड से। हालांकि वो, उसके पास इंटेलिजेंस, वो कहते हैं ना, जहीन है, मेहनती नहीं है। वो मेहनती नहीं था, वो जहीन नहीं था, लेकिन मेहनती था। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कि यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। सो नेचुरल इंटेलिजेंस शायद उसमें इतनी ज्यादा ना थी, लेकिन उसकी लर्निंग हैबिट्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग। इमाम गजाली, उसकी राइटिंग हैबिट्स को, उसकी राइटिंग्स को, उसके राइटअप्स को तो पूरी दुनिया ने उसको वेस्टर्न कंटेंट में भी इसको पढ़ा जाने लगा। उसकी कितनी ज्यादा बुक्स है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुए। क्या था उसमें? द हैबिट ऑफ रिफ्लेक्शन इन राइटिंग। तो ये सारी कहाँ से आई एग्जाम्पल्स? द हैबिट, द हिडन फोर्स। तो उन्होंने क्या किया? एक्सीलेंस कहाँ से आई? इट्स बिल्ड इन डेली हैबिट्स। उन्होंने इस पे काम किया, अपनी लाइफ पे काम किया। हमारा बच्चा भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। तो हैबिट्स होती क्या है? दीज आर रिपीटेड एक्शन जो हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, सबकॉन्शियस में कर रहे होते हैं। किसी ने हमें कहा कुछ, हमने उसको फौरन से रिप्लाई कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया। क्यों? इसलिए कि वो तो हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट था कि हमें यही रिस्पॉन्स करना है। उसको हम कहते हैं ना, हिप्नोटिक माइंडसेट। हमें पता भी नहीं होता, हम हिप्नोटिक पे चले जाते हैं, हम अनकॉन्शियसली रिप्लाई कर रहे होते हैं। समथिंग सोचे बगैर हम कुछ भी कर जाते हैं। तो क्या होता है? दीज आर हैबिट्स। तो रिपीटेड एक्शन दैट रन्स ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली, जो हमें ड्राइव कर रहे होते हैं, हम उसको ड्राइव नहीं कर रहे होते, हम बगैर सोचे। वो मेरे मुंह से अचानक निकल गया। कैसे निकल गया भाई? इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, इट्स फाइन, ह्यूमन एरर अपनी जगह है। बट समथिंग इज अनइंटेंशनल। मुझे ऐसा करना नहीं था, अब मुझे दुख हो रहा है, मैंने क्यों कर दिया? इट इज नॉट माई पर्सनैलिटी। बट क्या हुआ? वो ऑटोमेटिकली आपसे हो गया। इट वॉज अ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन क्यों हुआ? बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपका एक्सपीरियंस था जिसने आपको ये करने पे, अ, जिस वजह से आपसे ये हो गया। ठीक है? सो शेपिंग हु वी बिकम, एवरी स्मॉल एवरी स्मॉल चॉइस कंपाउंड इनटू ईदर ग्रोथ और स्टेग्नेशन। इसको हम जल्दी से ऐड करते हैं क्योंकि टाइम हमारा वैसे भी। अच्छा, हैबिट्स बनती कैसे हैं?
spaced repetition, and consistent practice rewires the brain for mastery. Spaced repetition जो है ना बड़ी अच्छी टर्म लगी मुझे इस बुक में, इसको मैंने बाकायदा रिसर्च किया। फिर आई शेयर यू। तो स्पेस आपको हैबिट कैसी आपकी शेप होती है? कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रिवाइज द ब्रेन फॉर मास्टरी। तो देखिए रिपीटेशन तो आपको करनी है, आपको अपने कंटेंट में, आपके बच्चे को उसके कंटेंट में रिपीटेशन तो करनी है टू मेक द न्यूरॉन मोर पावरफुल, मोर स्ट्रॉन्गर, मोर कनेक्टेड। लेकिन स्पेस रिपीटेशन, आपने जो कंटेंट आज याद किया ना, उसको दोबारा से आधे घंटे बाद याद करने की जरूरत नहीं है। 3 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, बच्चे से कहते हैं ना इसको 10 बार पढ़ो आपको याद हो जाएगा। नहीं नहीं, दिस इज वेरी फॉल्स प्रैक्टिस, प्लीज डू नॉट से दिस। मेरे बच्चे को स्पेलिंग याद नहीं हो रही, कल उसका स्पेलिंग टेस्ट है, आई एम अ मदर, मुझे पता है मुझे याद कैसे कराना है, 10 बार पढ़ो याद हो जाएगी। प्लीज फॉर गॉड सेक, स्पेस रिपीटेशन। आपने एक बार उसको स्पेलिंग याद कराई, उसको याद हो गई, फाइन, 10 बार नहीं पढ़ाना आपको, उसको आपने 1 घंटे बाद उसको याद करवाया, सेम थिंग। प्रैक्टिस एवरीवेयर। 3 घंटे बाद पूछा बेटा कैन यू प्लीज रिवाइज स्पेलिंग, स्पेस दो, रिपीटेशन करवाओ, बट यू नीड टू गिव देम स्पेस, गेट सम स्पेस बिटवीन रिपीटेशन, अदरवाइज योर 10 बार पढ़ो, 100 बार लिखो, इट विल नॉट वर्क प्लीज। तो आपकी हैबिट कैसे शेप होगी, आपकी जो न्यूरॉन्स कनेक्ट कैसे होंगे, आपकी ब्रेन रीवायर कैसे होंगे, मास्टरी कैसे आएगी? स्पेस रिपीटेशन, नॉट ओनली रिपीटेशन, एंड कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट प्रैक्टिस विद intervals, then turning daily efforts into routine, transform struggle into skill। डेली एफर्ट्स करनी है, डेली वो कंटेंट याद करना है। ऐसा नहीं कि आपने वो कंटेंट एक टाइमलाइन आज आपने याद की, 1996 में 1947 की टाइमलाइन आपने आज याद कर ली, बच्चे को पूरा क्वेश्चन करवा दिया, वो अगर आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी के आपने मैथ्स पढ़ा दिए कहीं से, इस टाइम की आपने पूरी टाइमलाइन, पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी, मदीना एंड मक्का की, मदनी एंड मक्की लाइफ की, लाइक व्हाट हैपन? 1 हफ्ते बाद बच्चा भूल गया। क्यों? इसलिए कि आपने उसको इंटरवल में पढ़ाया ही नहीं, उसको डेली एफर्ट करवाए ना, डिफरेंट टेक्निक से, डिफरेंट एक्टिविटीज से, तो उसकी रूटीन का पार्ट बनाए, तो क्या होगा एट द एंड, वो एग्जाम टाइम पे आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स, बाय मंथली में आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं आएगा कि एग्जाम से 2 दिन पहले आपको रिवीजन सेशन लेना है। वाई? इट विल नॉट वर्क। आपकी लर्निंग, आपके न्यूरॉन्स कनेक्ट करेंगे नहीं कि एग्जाम से 2 दिन पहले आपने रिवीजन करवा दिया, एंड दिस रिवीजन विल बी सो सक्सेसफुल कि हमने पूरा टॉपिक तो पहले पढ़ा लिया है, अब तो रिवीजन रहता है ना हमारा। और बच्चे को तो सब आता है रिवीजन की, अगर बच्चे को सब आता है तो सब बच्चा ये स्टार्ट क्यों नहीं लाता? फिर ब्रेकिंग एंड बिल्डिंग पैटर्न्स, अपना पैटर्न भी तो ब्रेक एंड बिल्ड, ब्रेक एंड बिल्ड जैसे हमने पहले बात की। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट वी रिपीट वी रीइंफोर्स। जो भी रिपीट कर रहे होते हैं ना हमारे ब्रेन में रीइंफोर्स हो रहा होता है, चाहे गुड और बैड। बच्चा अगर अब बैड चीजें भी देखेगा, रिपीट करेगा, तो वो रीइंफोर्स ही कर रहा है, वो लर्निंग ही कर रहा है, बैड हैबिट भी डेवलप कर रहा है, गुड हैबिट भी डेवलप कर रहा है। तो रिप्लेस अनप्रोडक्टिव पैटर्न विथ इंटेंशनल वंस, फ्यूल बोथ फोकस एंड कॉन्फिडेंस। तो आपको क्या करना है? यू नीड टू अंडरस्टैंड ब्रेन पैटर्न, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर लर्निंग पैटर्न, एंड यू नीड टू डेवलप योर लर्निंग पैटर्न। आई होप दिस इज यस। अब बड़े मजे की एक स्लाइड हमने ये देखी थी, इसमें बुक में एक चैप्टर था द लर्निंग ट्रैप। फिर बच्चा ट्रैप में आ गया, अपने आप को फूल तो बना लिया, अब लर्निंग ट्रैप भी होता है बच्चे को। लर्निंग ट्रैप में आ रहे होते हैं, टीचर भी, ये बच्चा तो मैथ्स में बहुत ही वीक है, क्या करे, उसको तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आते। ये बच्चा, अच्छा दूसरी टीचर साथ कह रही है नो, ये रीडिंग में तो बड़ा ये मेमोराइजेशन में तो बड़ा अच्छा हो सकता है, इसका ब्रेन जो है अ, बहुत ज्यादा इस तरह की लॉजिकल चीजों को ना सोचता हो, ना समझता हो, वो मेमोराइजेशन अच्छा कर लेता है, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बड़ी अच्छी है, वो मेमोराइजेशन तो बड़ा अच्छा कर लेता है, इस्लामिया तो बड़ी अच्छी याद कर लेता है, मैथ्स में वीक है, इसका ब्रेन लॉजिकल नहीं है। सो दिस इज आवर लर्निंग ट्रैप। कोई बच्चा कुछ भी कर सकता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहती है कि जो मैं कर सकती हूँ वो आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो वो आपका लर्नर कर सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। ये बिल्कुल मिथ है, ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि एक बच्चा अगर अच्छा है तो दूसरा बच्चा नहीं, हर बच्चे की सेम कैपेबिलिटी नहीं हो सकती। बट क्या होता है, आप उसको उसके पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हो। कैसे पहुंचा सकते हो? तो लर्निंग ट्रैप क्या है हमारे पास? बच्चा हमारा क्या करता है, डोंट जस्ट फॉलो योर पैशन, ब्रॉडन दैम। मेरा पैशन है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग बड़ी अच्छी आती है, मेरा माइंड जो है ना इसमें बड़ा अच्छा चलता है कि मैं एसईओ कर लूं, मैं फला कर लूं, ये वो कर लूं। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, मुझसे डिजाइनिंग नहीं होती, मेरा पैशन ही ये नहीं है, या चले इसको भी छोड़ दें, आप कंप्यूटर को भी छोड़ दें,
साइकोलॉजी मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी, मेरा पैशन ही नहीं है, मैथ्स मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी, मेरा पैशन ही, मुझे पसंद ही नहीं है सब्जेक्ट। तो प्लीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आप अपनी फील्ड चेंज करते हो। क्यों? आपके बच्चे ने मैट्रिक साइंस से किया, फिर उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, फिर अपना सब, उसकी करियर काउंसलिंग नहीं थी, दिस इज वेरी ट्रू, एक चीज उसकी थी, लेकिन उसका पैशन भी तो आपको अंडरस्टैंड करना है। लेकिन अगर वो पैशन रॉन्ग है, वो लर्निंग ट्रैप में है कि मुझे तो अच्छा ये लगता है, मैं ये कर जाऊंगा, आगे जाके कहता है मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, पहले तो ऐसा मुझे नहीं लगता था, तो शायद मेरा ये टॉपिक अच्छा नहीं है, मैं इसमें मास्टरी कर नहीं सकता, मैं आसान चीजों में चला जाऊं, मैं फैशन डिजाइनिंग में चला जाऊं, वो आसान है, मेरा इंटरेस्ट भी है फैशन डिजाइनिंग की तरफ, तो क्या वो आसान है? आपका पैशन है, मैं कुकिंग में चली जाऊं, कलनरी आर्टिस्ट बन जाऊं, होटल मैनेजमेंट मेरा पैशन है, हाउ डू यू नो दिस इज योर पैशन? आगे जाके आपको पैशन नहीं रहेगा। ठीक है, पैशन इज वैल्यूएबल, बट एक्सप्लोरिंग, इसको एक्सप्लोर तो करो, बियॉन्ड इट ओपन्स न्यू पॉसिबिलिटीज। न्यू पॉसिबिलिटीज हो क्या सकती है? व्हाट आर अदर ऑप्शंस डू यू हैव? क्या आपका माइंड उस पे लगता है? ट्राई डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेंटोर से मिलो। जरूरी है आपकी लाइफ में एक मेंटोर होना, आपके बच्चे की लाइफ में, आपके टीचर की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में एक मेंटोर होना जरूरी है जो आपको गाइड कर सके, जो आपको डायरेक्शंस दे सके। लिमिटिंग योर सेल्फ टू वन फील्ड कैन रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ एंड करियर ऑप्शंस। मुझे सिर्फ यही अच्छा लगता है, मैं सिर्फ इसी में ग्रो कर सकती हूँ, नहीं। क्यों ग्रो कर सकते हो? बहुत सारे लोगों को हमने देखा है अपने करियर चेंज करते हुए, अपनी फील्ड चेंज करते हुए। मेरा अपना बहुत अच्छा बिजनेस था, मेरे बिजनेस में अल्लाह ना करे व्हाटसएवर, मेरे बिजनेस में मुझे लॉस हो गया, कुछ भी हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं टीचिंग में जाऊंगी, मैं दूसरे जॉब में जाऊंगी, मैं दूसरे बिजनेस में जाऊंगी। सो व्हाई डिड यू लिमिट योर सेल्फ इनटू वन बिजनेस? कि अगर अब बिजनेस बंद हो गया तो कुछ नहीं करोगे, बिकॉज दैट वाज योर पेशन। अब क्या करना है? यू नीड टू चेंज, यू हैव टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज। तो बेटा, अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है, अगर आपको इंग्लिश पसंद नहीं है, दिस पसंद नापसंद कैन नॉट स्टॉप योर लर्निंग। एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज, एक्सप्लोर करो इसके अंदर क्या चीजें हैं ऐसी जो पसंद नहीं है। तो अगर आप अपने आप को स्पेस रेपिटेशन में रखते हो, मे बी यू विल फाइंड समथिंग interesting. You will find that topic little bit relevant to you. A learner who once avoided maths later mastered it through spaced repetition. तो बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल इस बुक में, जो राइटर है वो खुद अपनी एग्जाम्पल देती है। वो कहती है बारबरा कि मुझे शुरू से लैंग्वेजेस में बहुत इंटरेस्ट था, मैंने दुनिया भर की जबानें सीखी, मुझे मैथ्स कभी पसंद नहीं थी, लेकिन जब मेरे टीचर ने मुझे कहा कि यू नीड टू स्टडी मैथमेटिक्स, इसके बगैर आप ये कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको ये डिप्लोमा कंप्लीट नहीं होगा, देन आई स्टार्टेड लर्निंग थ्रू स्पेस रेपिटेशन। फिर वो बताती है कि मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। फिर क्या हुआ कि जो मैंने 10 लैंग्वेजेस सीखी थी और मैं लैंग्वेज में बहुत ज्यादा अपने कमांड्स रखती थी, जर्मन लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज, मैंने क्या किया, मुझे मैथ्स में इतना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि नाउ आई एम सर्विंग एज अ इंजीनियर। मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रांग है। द राइटर, द ऑथर सेज इटसेल्फ। अच्छा, फिर कहती है स्किल्स कैन बी बिल्ड, मैथ्स इज अ स्किल, लैंग्वेज इज अ स्किल, तो स्किल बिल्ड हो सकती है, आपको पसंद हो या ना हो, स्किल सीख सकते हो। पैशन ऑफन फॉलोज कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तो पैशन भी आपका है, आप उसके साथ जाओ, बट एट अ टाइम इफ यू चूज टू ऑप्शन, नथिंग रॉन्ग इन दैट। दोनों चीजें रखो, ठीक है? बहुत सारे ऑप्शन हमें साथ लेके चलने होते हैं, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल थिंग। 21st सेंचुरी में रह रहे होते हो, यू हैव टू डील विथ मल्टीपल थिंग्स, तो यू हैव टू यूज योर मल्टीपल इंटेलिजेंस एज वेल। encourage स्टूडेंट टू एक्सप्लोर वाइल्डली बिफोर चूजिंग अ पाथ। किसी में भी जा रहे हो ना, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, बहुत सारी चीजें आगे हैं। ट्रू लर्निंग हैपन्स व्हेन curiosity expand beyond comfort zone, so you have to go beyond your comfort zone, explore, and then इसके बाद आप पहुंचोगे अपने ग्रोथ जोन में। So this is the end of our presentation. This is the end of our lesson. अब हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं, रिकॉल करते हैं कि what is one common practice you can now replace with an uncommon one. अभी हमने कुछ देखा अनकॉमन है, कुछ है कॉमन। कॉमन प्रैक्टिस हमने देखी, तो मुझे write anything in the chat box कि that was the common practice. Now you can replace with uncommon practice. Maybe कि आप शॉर्ट ब्रेक दे दोगे लर्नर को, whatsoever you feel, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, लर्निंग ट्रैप से कैसे बचाओगे अपने लर्नर को, किस तरह से, वॉट एवर यू गेट वन वर्ड फ्रॉम टूडेज लेसन, योर फीडबैक इज हाईली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक।
It means a lot to me. So please, one thing, one uncommon thing, or you can say one brain sense thing. Jazakallah. Acha. Next is, how do working in long-term memory affects the way students learn? So please reflect after this session कि वर्किंग मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे काम करती है, क्यों हमें शायद कल की परसों की बात याद नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी बातें याद रह गई हैं। मुझे 10 साल पहले की बात याद है, मुझे तो परसों क्या बात हुई थी, हालांकि सेशन में थी, आई वाज देयर। लास्ट टाइम जो वर्कशॉप थी, आई वाज देयर, बट आई एम अनेबल टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग। क्यों? वर्किंग मेमोरी में क्या था, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जिसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, खुद फील किया, खुद टच किया, वो मेरी मेमोरी में कैसे रह गई 10 साल पहले वाली बात, तो स्टूडेंट कैसे लर्न करते हैं। देन प्लीज द लास्ट थिंग यू नीड टू रिफ्लेक्ट आफ्टर दिस सेशन, व्हाई आर डिफ्यूज ब्रेक्स और पोमोडोरो साइकिल एसेंशियल फॉर कोग्निटिव हेल्थ। आपका ब्रेन कैसे हेल्दी होगा, आपका कोग्निटिव हेल्थ किस तरह से हेल्प करेगी आपको डिफ्यूज मोड में ले जाने के लिए। जब आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स, आपके ब्रेन के सेल्स रिलीज होंगे, रिलैक्स होंगे, एंड यू विल गेट न्यू कॉन्सेप्ट और द already learned concept in some more better way. So how can you use these techniques in your own learning? So this is end from my side. Jazakallah for your time, for your patience, for listening me. Thank you so much and see you soon. Please keep me in your prayers. Allah Hafiz. Take care. Okay, thank you so much, Rumela, Ji. for conducting this wonderful session. And I'm now going to paste the certificate link in the chat box. Thank you so much. Okay, participants, please receive your certificate. I've pasted the link in the chat box. Okay. Thank you so much, Rumela.